My dear, very good day to you. You are most welcome here in our class. I am going to give you few ideas about road not taken, as it is our second video. In this video, general conversation will take place as the theme and the summary of the poem, and then after I will solve the exercise. Let us see that. Here Robert Frost, as you know that he is an American poet, has written about the general topic, but the sense of the poems that has been written are very, very deep in the sense. As a traveler he is, and he has been going through the forest in the autumn season, and he noticed that the two roads, the road not taken previously, you know that this is the journey of life. This is not the simple road on which the poet is talking about. That is the road of life, the ways of life, journey of life, that is the ways of life. In my previous videos, I discussed about your own status as you are in 9th class, and after your 10th class you will decide which subject should we offer to study. As I told you, there are the 4 subjects: arts, physics, science, that is mathematics, biology and commerce. For example, I told you that in case if you have been opting, if you have been taking one subject, if you choose one subject to carry on your study, to get education, you will do the things according to the branches of your subjects. अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आर्ट्स के क्या होता है, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में क्या होता है, कॉमर्स पढ़ते हैं तो कॉमर्स में क्या होता है, या फिर बायोलॉजी का अगर आप साइड लेते हैं तो आप क्या करें। जैसे आप मैथ्स पढ़ करके डॉक्टर नहीं बन सकते, आप बायोलॉजी पढ़ करके इंजीनियर नहीं बन सकते। हाँ, ये अलग बात है कि बायोलॉजी पढ़ करके या मैथ्स पढ़ करके हम आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं जो आर्ट्स वाले होते हैं। लेकिन आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने में, अगर मान लीजिए आपने हिस्ट्री पढ़ा, सपोज दैट यू हैव studied history and you got PhD in history, then you will be the professor of history. ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के प्रोफेसर होंगे, टीचर के रूप में भी आ सकते हैं। अब इफ़ आफ्टर कंप्लीटिंग योर MSc or BSc or MA BA you want to transpose your service from one to another branch, it is impossible to you to do. So the result of the decision that you have made in the early part of your life will give the result in future. So as the poet has been getting himself muddled and confused at a point, as he comes this way and attend the wood or forest, that is wood means forest, and here he noticed that the road is diverged into 2 different directions. The road is diverged, मुड़ा हुआ है, in 2 different or opposite directions. Opposite directions में ये road 1 और road 2 है, and it has many branches. तो he comes here and stands silently, observes both the roads, and he finds which road has been claiming better. Because of autumn season, the roads
have been covered with the yellow leaves. येलो लीव्स से कवर किए हुए हैं। जैसे कि आटम सीजन है तो इसमें शेडिंग टाइम होता है, तो पेड़ के पत्ते येलो कलर में हो जाते हैं, पूरा फॉरेस्ट येलो कलर में हो जाता है। तो इस तरह से जो पत्ते पेड़ से गिरते हैं हवा की वजह से, नाउ द लीव्स हैव कवर्ड द रोड्स, बोथ द रोड्स, एंड देयरफॉर इट बिकम्स डिफिकल्ट टू डिसाइड on which road should the author move. That is the life, the road of life. मान लीजिए आपको मैंने बताया कि 4 रास्ते हैं, 4 पार्ट हैं, तो आपने किस पर चलना है, यू हैव टू डिसाइड, दैट इज द चॉइस मेकिंग। डिसीजन मेकिंग और चॉइस मेकिंग, एंड चॉइस मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग इज सच अ पॉइंट इन द लाइफ दैट gives and makes the journey of life and gives the result whether it is successful or unsuccessful. ये सफल होता है कि असफल होता है, इस पर वो अपनी वो डिसीजन देता है। जो हमने चॉइस किया, जिस रास्ते पर, जीवन के जिस रास्ते पर चलने का मैंने मन बनाया, या मैंने जो डिसीजन लिया, जो चॉइस बनाया, जो ऑप्शन चुना, वो उस ऑप्शन का रिजल्ट हमें लाइफ में फ्यूचर में दिखाई देगा। वी सी द रिजल्ट इन फ्यूचर। हमको पोएट यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग डिसीजन यू शुड बी वेरी मच केयरफुल एंड कॉशियस। जब भी आप कोई किसी पॉइंट का डिसीजन लें, किसी पॉइंट पर निर्णय करें जो आपके जीवन से संबंधित है, तो ऐसे में बहुत सोच समझ करके बहुत केयरफुल डिसीजन लेना चाहिए। और ख़ास करके पोएट ने ये बताया कि व्हाइल मेकिंग डिसीजन द ह्यूमन बीइंग नाउ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हम किस दिशा में अपना अट्रैक्शन डालते हैं। समटाइम्स वी ट्राई टू फाइंड द ईजिएस्ट वे ऑफ लाइफ, easy way of life. तो easy way of life में जब हम चलते हैं तो what we see something different from our expectation, something different from our expectation। जो हमें उम्मीद रहती है उससे हम डिफरेंट चीज़ें सोचते हैं। तो क्या होता है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं लेकिन बड़े ही आराम के तरीके से, आसानी से करना चाहते हैं। तो इन द बिगिनिंग इफ़ वी ऑप्ट द इजी वे ऑफ लाइफ, वी मूव वेरी इजीली एंड कंफर्टेबली ऑन दी वे ऑफ आवर डिसीजन। जो डिसीजन हम बनाए रहते हैं उस पर हम बड़े ही स्मूथ तरीके से, बड़े आसानी से हम अपना चलते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट हमको बाद में मिलता है कि वट एवर आवर डिसीजन वॉज गुड और बैड, हमारा डिसीजन अच्छा रहा कि खराब रहा। तो सबसे पहले लोग अट्रैक्ट होते हैं इजी वे में, जो आसानी से मिल जाए उस पर लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। एंड द एनदर वे दैट इज़ द वे ऑफ हार्डशिप, द वे ऑफ हार्डशिप। तो कुछ ऐसे भी होते हैं कि जब हम यह मान के चलिए कि जब हमें अच्छा काम करना होता है तो हमारे रास्ते में ज़्यादा हर्डल, बैरियर्स ज़्यादा आते हैं, बाधाएं आती हैं, विघ्न पड़ता है ज़्यादा। हम कोई भी काम अगर जिसका रिजल्ट अच्छा होता है तो अच्छे रिजल्ट के लिए अगर हम बेहतर काम करते हैं तो उसमें हमें कठिनाई ज़्यादा मिलती है। जैसे आपको अच्छा नंबर लेना हो और आपको मेरिट लिस्ट में आना हो, आपको टॉप करना है गोरखपुर ज़िला, आपका उत्तर प्रदेश टॉप करना है, तो इसके लिए आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। पास होना है, 33% लेना है, तो इसके लिए भी मेहनत है। तो इजी वे वाला तो है 33% है,
और हार्ड सी बोला है कठिनाइयों से चलने वाला, यानी कि जितना ही नंबर लेना है उतना ही आपको संघर्ष करना, उतना ही मेहनत करना है, दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। तो इसके लिए हार्ड सी वाला रास्ता लेना चाहिए। द पोएट हैज अटेम्प्टेड द वे ऑफ हार्डशिप दैट वाज लेस ट्रैम्पल्ड आर लेस बियर। ऐसे दो रास्ते में से जब उसने देखा कि बहुत पहले तो बड़ा सिमिलर दिखाई दे रहा था, लेकिन जब ज़्यादा उसके देखा, व्हेन ही थॉट डीपली अबाउट द वेज, व्हेन ही कैलकुलेटेड, व्हेन ही नोटिस्ड डीपली, व्हेन ही गॉट द कंक्लूजन कि एक रास्ता तो बड़ा ही आसान था जिस पर लोग चले थे, काफ़ी लोग चले थे। यानी काफ़ी लोग किस पर अट्रैक्ट होते हैं, तो ईजी वे पे अट्रैक्ट होते हैं। तो वो क्या किया कि जिस पर ज़्यादा लोग गए थे वो उसको छोड़ दिया, वांटेड वियर। तो अब वो रास्ता चुना जिस पर कम लोग चले थे, दैट हैज़ बीन ट्रोडन लेस, माने ट्रैम्पल्ड लेस, जो कम चला हुआ था। तो अब जब कम चला हुआ था तो जाहिर सी बात है उसको भविष्य में क्या मिलेगा, लेकिन वो कहता है कि इसका रिजल्ट तो हमें तत्काल नहीं मिलना है, इसका रिजल्ट हमको बाद में मिलना है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं। Now see, thinking about the poem, the first parts of first question, where does the traveler find himself? I think you know the answer. The traveler find himself in the yellow wood. I have been writing the hints. Hint क्या है इसके लिए? Hint क्या है? The traveler finds himself फाउंड होना चाहिए ना, ठीक है। finds himself in a yellow wood. कहाँ पाता है? येलो वुड में पाता है, हैं? ही इज पासिंग द वे, ऑटम सीजन है, ऑटम सीजन है। नाउ standing at a point where two roads are going in different direction, direction. Different, diverge. Two roads are diverge. His condition, muddling condition. He has to make choice. He has to make choice, that is the right choice. To make a right choice in life, and it is a great problem to him, and this choice making was a problematic condition to him. He was in a problem, he was in a great confusion, he was in a great confusion
to make choice. It was a great confusion to make a choice. Please note it down. Have you noted? Now, first one, so second, discuss what these phrases mean to you. First, a yellow wood. Now, the woods are yellow because the autumn season, because of autumn season. Because of autumn season, the falling leaves in the wood are small forest turn yellow. This is the probable explanation. The second part, it was grassy and wanted wear. It was grassy and wanted wear. It stands for the path. The paths had grass on it, it seemed it seemed sorry my dears, it seemed to him that the road had not been much used. It was a smooth road which had not worn out.
Next, the third one, the passing there. The passing there used by traveler. Used by traveler. Fourth one, both the roads were covered with yellowish leaves which has not been crushed under the feet of travelers. Now, therefore, the leaves were not blackened. The leaves were not blackened. मैंने ये काला नहीं हुआ था, लीव्स ब्लैकेंड नहीं हुआ था, ट्रैम्पल्ड नहीं थे तो ब्लैकेंड नहीं हुआ था. और बढ़ा दें, इट कुड रिप्रेजेंट a path one may have never or seldom take in life for the fear of uncertainty. ध्यान दीजिएगा कि both the roads were covered with yellow leaves which has not been crushed. crushed माने पैर से नहीं चला गया था, उस पर चले नहीं थे. crushed under the feet of travelers. वो रास्ते पर जो पत्ते गिरे हुए थे वो उस पर से लोग नहीं गए थे, इसलिए द लीव्स वर नॉट ब्लैकेंड. इसलिए पत्तों पर अगर चला गया होता तो पत्ते घिस गए होते, काले हो गए होते, पैर के कुछ निशान हो गए होते जिसकी वजह से वो ख़राब हो जाए. जैसे घासें होती हैं, घासें पर लोग चलते कुछ दिन तक तो वो सूखता है, तो उसके बाद फिर वो रास्ता ही चिकना हो जाता है. अगल बगल घासें रहती हैं लेकिन वो बीच का पतला सा रास्ता चिकना हो जाता है. तो वो क्या होता है कि ट्रैम्पल्ड बताया जाता है कि मतलब हाँ लोग इस रास्ते चलते हैं, इसे शो होता है. इसमें नहीं हो रहा था. इट कुड रिप्रेजेंट अ पाथ वन मे हैव नेवर आर सेल्डम टेक इन लाइफ. मैंने शायद कोई इस पर कभी चला ही न हो, फॉर दी फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, क्योंकि लोग सोच रहे थे ये कठिन रास्ता है, पता नहीं क्या होगा,
क्या नहीं होगा, इसे भयवश लोग उस पर नहीं चले थे। तो इसे नोट कर लीजिए। Here we see, is there any difference between the two roads as the poet describes them? पहला, in stranger 2 and 3, and दूसरा, in the last two lines of the poem. Yes, of course, he finds the difference between all these. As he stands there and makes a decision. Why? Because it lay equally to him. As we see, the stranger 2 and 3 then took the other. He observes the other road, just as fair, was looking very nice, very fair, and having perhaps the better claim, and he thinks that the road will claim better. That is, it has been claiming, it has been announcing, it has been showing itself that it is very nice, because it was grassy and wanted wear. Because the road was grassy, the road was grassy and was looking wanted wear, that it has not been trampled, it has not been travelled by the people, by the human being, कि human being इस रास्ते से नहीं गया है. Though as far that the passing there, जहाँ तक गुजरने का सवाल है, as far as the passing there, जहाँ तक लोगों के गुजरने का सवाल है, had warned them really about the same. तो had warned them really about the same, about the same, ये दोनों लगभग लगभग समान दिख रहे थे. थर्ड स्टेंजा में है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले. मॉर्निंग में जब भी ये सुबह जाता है वो देखता है कि मॉर्निंग इक्वली ले, दोनों बराबर हैं. सुबह जाता है तो देखता है कि इक्वली ले हैं. इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, कि उस पर लोग चले हुए नहीं थे. अगर चले हुए होते तो इट लुक्स ब्लैक, तो ये काला दिखता, क्योंकि पैरों से वो कुचला हुआ था तो वो काला हो जाता चलने की वजह से. कई लोग चलते तो रास्ता साफ दिखाई देता. ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे. उसने क्या सोचा, आई केप्ट द वन फॉर एनदर डे, दूसरे दिन हम जाएंगे तो ऐसा उस पर चलेंगे. यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन वो ये भी जानता था कि दैट आफ्टर मूविंग वन टू एनदर प्लेस इट इज़ इम्पॉसिबल, कि आज इस रास्ते पर चलें और कल उस रास्ते पर चलें. आज आप ये सब्जेक्ट पढ़े और 10 साल बाद दूसरा सब्जेक्ट फिर पढ़ने इस पर आ जाएं, फिर 9th क्लास में 10th क्लास में एडमिशन हो, संभव है? नहीं, संभव नहीं है. नाउ तो क्या है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, मैंने एक रास्ते के बाद उसमें एक ही रास्ते में कई ब्रांचेज निकलने लगते हैं. अभी मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि ये ट्रीज़ के ब्रांचेज की तरह से शाखाएँ निकलते रहती हैं, ब्रांचेज निकलते रहते हैं, रास्ते निकलते रहते हैं उसमें से. आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, तो उसने डाउट किया कि मतलब क्या मैं वापस दोबारा इस पर आ सकता हूँ. तो इट इज़ इम्पॉसिबल दैट ही कैन नॉट कम. अब देखिए उसने कहा है कि इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम उसने कहा आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई. अब देखिए वो हार्डशिप वाले रास्ते पर अपने आप को जाता है कि जो लेस ट्रेवल्ड है उस पर वो चल रहा है. तो अगर आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, तो यही सारा डिफरेंस उसको फ्यूचर में दिखाई देगा. अब थोड़ा सा हिंट पे लिख देते हैं, चलिए देखते हैं इसका. द पोएट हैड टू मेक द आंसर हिंट में है भैया. द पोएट had to make a suitable choice between the two roads.
both the roads were covered with yellow leaves. Seemed equally good. And fair. To him. But one road looked more grassy than the other. The poet chose less traveled road and it makes all the differences in his life. All the differences in his life. Yes, my dear, note it please. What do you think the last two lines of the poem? Yes, of course, last two lines of the poem, as he makes a decision of less traveled road to move on, and that has been giving most of the differences in his life that will come into the future, that will be seen into the future, it will not be seen at once. तो इस तरह से ये डिफरेंस देगा कि लाइफ में जो भी उनको बनना है, जो भी होना है, अगर हम कठिन रास्ते पर चलते हैं तो व्हाट विल हैपन, हाउ शैल वी बिकम, वेदर वी शैल बिकम अ गुड सिटीजन आर नॉट. तो ये डिफरेंस उसको बाद में देगा. लेकिन अब अगला है, नेक्स्ट है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस. तो ये इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू दैट यू आर सपोज टू आंसर. पार्ट 2, assignment for you, my dears. Page number 16, page 16. Thinking about the poem, thinking about the poem, second part, first and second. This is the assignment to you. You are supposed to do it. In my next video, I will teach you grammar, that is article. Thank you, my dears. Now once more I would like to wish you have a very good day. Thank you.